So good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. In the last, did you go Good back? morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Did you go back and read contingency approach? Yes, ma'am. Today we're going to do systems approach. Okay, this is probably the last approach of management. This is very simple to understand, and you have contingency approach. जो लीडिंग मैनेजमेंट थिंकर्स है आपके मॉड्यूल में वो आप खुद पढ़ेंगे because that is just the theory part. वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं. See, when we talk about the contingency, or when we talk about the systems approach to management, we understand that बाकी जितने भी approaches to management रहे, these approach to management in a way were the theories that did not propound system as an open system. How? The theories and the approaches in the previous approach we saw that these approaches, they do not show the interaction and the impact of interaction of environment on management in an organization. But systems approach is a very recently in 1960s, the system approach was advocated. According to the systems approach, what happens that organization is considered to be a system as a whole. जैसे कोई एक full है, there is a complete entity, and then the other parts are subparts of that, the elements which constitute together with joins together, and then they make the complete entity. This is known as systems approach to management. According to this, the organization is considered to be a system, complete system, and the organization is considered to be a system, and the various components of the organization are considered to be the subsystems of the organization. Okay, subsystems of the organization. For example, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है ABC, उसको आप एक एंटिटी कंसिडर करते हैं, एक फुल कंपोनेंट कंसिडर करते हैं, तो उसके जो सब पार्ट्स होते हैं या सब सिस्टम्स हैं, जैसे वो क्या हो जाएगा, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, प्रोडक्शन. अब मार्केटिंग में बहुत सारा सब सिस्टम्स है, ये एक सब सिस्टम हुआ मार्केटिंग. अब मार्केटिंग में बहुत सारा सब सिस्टम है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, जैसे कि मीडिया मार्केटिंग, जैसे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया. ये सारे सब सिस्टम्स मिल करके एक सिस्टम ऑन एज अ होल क्रिएट करता है, जिसको सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट बोला जाता है. Systems approach to management is an approach which considers the fact, it emphasizes a lot of impact of the external environment on the internal businesses which are carried out. For example, अगर आप ये कंसिडर करें, जैसे सिस्टम भी दो तरीके का होता है. One is the closed system and the other one is open system. Normally, organizations are considered to be open system, but there are closed systems like physical systems and all. But you're mostly concerned, you people should mostly be concerned towards the open system. Open system ka matlab, it has a lot of impact on environment and a lot of interaction from environment. On environment also it has, and there is a lot of impact that the organization feels from environment.
in the form of feedback. Okay, for example, एक apparel company है, there is an organization which makes apparel. So that apparel, suppose it is a women apparel company, open system समझा रहे हैं तुमको, suppose it is a women apparel company. This organization, it is involved in making a lot of styles. It takes its input from where? The organization will take its inputs from the environment. For example, the technology, the raw material, the layouts, the various other inputs. It takes from the environment. This input is taken, and the raw material and other things, the input is processed. Okay, this processing takes place in the organization, and after processing it delivers output. ये output कहाँ जाता है? Environment में? Customers are a part of external environment. ये internal part है क्या organization का? चलिए बताइए, ये बात तो आपको कंफ्यूजन है. कस्टमर इंटरनल एनवायरनमेंट होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है? Wait, let me ask other. External, ma'am. सब लोग ये यूनानिमसली अप्रूव करते हैं कि कस्टमर्स आर द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? Yes, ma'am. तुम लोगों को हम एनवायरनमेंट भी इसीलिए थोड़ा सा डिटेलिंग किए थे, याद है? इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्लास में. Yes, ma'am. तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी दो तरीके का होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट. माइक्रो एनवायरनमेंट किसी भी इंडस्ट्री को पास से इन्फ्लुएंस करता है, कस्टमर्स माइक्रो एनवायरनमेंट में आता है. ठीक है, customers are a part of micro environment of an organization, and macro environment यानी जो पेस्टल फैक्टर्स. तुमको देखो माइक्रो में क्या क्या आता है? कस्टमर आता है, सप्लायर्स आता है, कॉम्पिटिटर्स आता है, ये सारी चीजें जो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं वो आती हैं. मार्केटिंग इंटरमीडियरीज यानी तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा कोई, है ना? रिटेलर होगा, होलसेलर होगा, ये भी तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है. तो ये चीजें तुम्हारे इसमें माइक्रो में आती है. पब्लिक्स मतलब वैसे लोग जो कि बाहर से इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे मीडिया, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में I don't know if any one of you remember that case or not, but there was but very often this comes in media that कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां women harassment ज्यादा हो रहा है, तो they take it to public and then उस कंपनी पे जो भी होगा, लेकिन एक पब्लिक का इमेज तो खराब होगा ऐसे. तो जैसे वुमेन्स ग्रुप, ये भी पब्लिक्स में आ जाएंगे. मीडिया, वो भी पब्लिक पे आ जाएंगे. एनवायरमेंटल कंट्रोल, वो भी पब्लिक्स में आ जाएगा. तो ये चीजें माइक्रो एनवायरनमेंट में आती है. मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या आता है? चलो तुमको बता ही देते हैं, क्योंकि सिस्टम्स अप्रोच समझने के लिए थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी समझना होगा. माइक्रो एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ? जो पास से तुम्हारे और थोड़े पास से तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, do you have control over the customers of your organization? तुम भी किसी ब्रांड को यूज करते होगे, ठीक है? जस्ट ऐसे ही एग्जांपल ले लो. वी आर ऑल फॉन्ड ऑफ सर्टेन ब्रांड्स. कुछ ब्रांड्स है हमारा जो हमको कंफर्टेबल लगता है, जैसे यू नो एनीथिंग, जस्ट रैंडमली एक ब्रांड ले लो. W एक कुर्ती का नाम है, राइट? देयर इज अ ह्यूज मार्केट फॉर दैट कुर्ती, फाइन, बिकॉज ऑफ द फैब्रिक ऑफ इट. लेकिन अगर उसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट की, people buy that is a little costly brand, but people buy that because the fabric is very good, because the stitching is very good. लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन जरा भी फॉल्टर करती है उसके क्वालिटी में, will the customer still be loyal to that organization? Maybe not. जरूरी नहीं है. इसीलिए
कस्टमर्स को हमेशा वो करते रहना, कस्टमर्स को बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करते रहना, ये भी ऑर्गेनाइजेशन को इंसिस्टेंटली ये चीजें करनी पड़ती हैं. फाइन, दैट इज व्हाई जो हम ये कहते हैं कि प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आप इस साल के अपैरल को डिजाइन कर लिए और फिर नेक्स्ट ईयर उसी को लॉन्च कर देंगे, तो वेरी देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि रिपीटेड डिजाइन्स आपकी मार्केट में नहीं बिकेंगी, because people already have that repeated design. Understood? Customers हो गया. Then you have suppliers. देखो, जब इंडस्ट्री होती है, ओके, वहीं पे कोई इंडस्ट्रियल जोन होता है, तो उसका कोई सप्लायर होता है उसके पार्ट्स का. कुछ पार्ट्स बहुत एक्सक्लूसिव होता है, जैसे गाड़ी के जो लोग फैन होते हैं, कई बार गाड़ी उसके मोटर की वजह से, उसके इंजन की वजह से बिकती है. फाइन, और उसका इंजन हर कोई सप्लाई नहीं करता है. There is a particular supplier who will supply that particular engine to, या manufactures that particular engine to that organization. In that case, आपको हमेशा सप्लायर से एक अच्छा रिपोर्ट बना करके रखना होगा और टाइम एंड अगेन उसको ये फील कराना होगा कि आपके साथ बिजनेस करना उसके लिए बेनिफिशियल है. ठीक है, क्योंकि सप्लायर हमेशा क्या चाहेगा, कम कॉस्ट में तुमको सप्लाई करना, ज्यादा कॉस्ट में तुमको सप्लाई करना, और तुम हमेशा चाहोगे कि कम कॉस्ट में उस सप्लायर से वो चीज खरीदे. राइट? These are the factors that do influence, that do exist in the external environment of your organization, although they are micro, but they are very, very substantial factors that influences you. Now, जब पब्लिक्स की बात करते हैं तो हम आपको बताएं, विमेन्स ग्रुप, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैरेसमेंट का केस हुआ, आपने देखा होगा विमेन्स राइट कमीशन वगैरह पे अगर ये बात जाती है तो उस चीज को हाईलाइट की जाती है. तो इन अ वे दीज आर थिंग्स आल्सो व्हिच इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का बैड लाइट में ये चीजें बाहर जाती हैं तो इट डज नॉट पेंट अ गुड पिक्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट. और ये चीजों को, जैसे उसका शेयर प्राइस गिर जाएगा, देयर आर अदर थिंग्स आल्सो. इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के पहले सोचेंगे. ऐसी फाइनेंशियल बहुत सारा रिपरकशन इस ऑर्गेनाइजेशन को झेलना पड़ता है. देन क्वालिटी कंट्रोल चेक्स वगैरह भी. जब कोको कोला में, जब मैगी में बात हुई थी कि परमिसिबल लिमिट से ज्यादा लेड का अमाउंट है, तो ये सारी चीजें क्या ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस नहीं की? बहुत की. ठीक है, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट से वापस लौटा. और ये बात सिर्फ वन टाइम लॉस की नहीं होती है, ये बात इसकी भी होती है कि पीपल विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम टू ट्रस्ट यू बैक अगेन. फाइन, ट्रस्ट यू बैक अगेन. वो अगर आप केस, जैसे कैडबरी में देयर वाज अ केस, जब देयर वाज अ टाइम, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर दिस थिंग और नॉट, कि कैडबरी इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन. उसमें कुछ है which is not fit for eating. तो even though Cadbury won this case, जिसने भी ये फाइल किया था, ये कोर्ट में कैडबरी ने ये केस जीता था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक नॉर्मल कस्टमर की तरह बात करें तो आपको भी लगेगा ऐसे कि क्या रिस्क लेना, छोड़ो दूसरा चॉकलेट खा लेते हैं. पता नहीं, इवन इफ कि वो केस जीत गया हो तो भी ये एक कस्टमर साइकोलॉजी होती है ना. यस मैम. तो मतलब मैम के दिमाग में एक चीज बैठ जाता है कि हाँ, ये साइकोलॉजी है. ओके, सो अभी कोई बोल दे कि कोरोना खत्म हो गया है, स्टिल पीपल विल मूव ऑन विद सैनिटाइजर्स. अभी अगर कंप्लीटली ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि कोविड इज आउट ऑफ द प्लेस, लेकिन स्टिल वो एक हैबिट होती है, वो एक साइकोलॉजी होती है. ओके, जैसे मैगी में लेड का अमाउंट ज्यादा, मैगी तो शुरू से ही पेरेंट्स मना करते हैं कि डोंट ईट टू मच ऑफ मैगी. ओके, लेकिन अब ये ऐसा ही हो जाएगा कि इट इज कार्सिनोजेनिक, द थिंग्स, द इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर देयर इन मैगी इज कार्सिनोजेनिक, दैट कैन कॉज कैंसर. ऑल द मोर यू विल नॉट लाइक टू गिव इट टू योर चाइल्ड. ठीक है, उसका कोई और रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट ढूंढे. तो दिस वे द एनवायरमेंट आल्सो अफेक्ट्स द बिजनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कोको कोला में पेस्टिसाइड, इसकी जब बात हुई थी तो
I think this was an activist group which claimed कि कोको कोला में permissible limit से ज्यादा amount है pesticide का, which is unfit for consumption. Understood? Then you Yes, ma'am. have micro environment में you have customers, you have competitors. Micro environment का एक बहुत बड़ा factor होता है competitors. Competitors कैसे influence करते हैं आपके business को, ये बताइए. आप क्या क्या तरीका सोच सकते हैं? सबसे पहले मैम बेसिक है कि वो प्राइस ऊपर नीचे कर सकते हैं. आपका कॉम्पिटिटर अगर सेम लेवल ऑफ क्वांटिटी का कोई प्रोडक्ट अगर सस्ते दाम में दे रहा है तो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है. सस्ते दाम में विद सेम क्वालिटी. एट द एंड ऑफ द डे सत्यम, पीपल विल गो फॉर क्वालिटी. अगर आप एक पेन खरीदते हैं, वो पेन आपको 1 रुपए में मिल जाती है, लेकिन लिखते लिखते वो पेन टूट जाती है, तो आप बहुत दिन तक वो 1 रुपए का पेन नहीं खरीदेंगे. You will still go to buy 5 rupee pen or 10 rupee pen. Okay, so at the end of the day, poor quality की चीज ऑर्गेनाइजेशन को लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं किया जा सकता है. ठीक है. So competitors, they can influence you through pricing. ठीक है, एक बात तुमने कही pricing. और मैम टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी, यस, वेरी गुड. टेक्नोलॉजी अगर मैम के साथ भी तो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. प्लीज मैम जैसे हम कोई एक पेन ये करे, उसके साथ ऑफर रख रहे हैं कि एक के साथ एक फ्री, तो उसमें भी तो कस्टमर ये होते हैं. तो ये तो डिपेंड करता है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन इस स्टेटस में है कि नहीं कि वो फ्री दे सकती है, क्योंकि हमेशा वो चीज फ्री दे वो जरूरी नहीं है. एंड एट द एंड ऑफ द डे एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सिटिंग देयर टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है. अगर जैसे कि हम तुमको बताते हैं, ये सब डिपेंड करता है कि तुम किस टाइप का गुड्स बेच रहे हो, किस टाइप का सर्विसेज बेच रहे हो. तुम प्रमोशन के लिए है क्या गुड एडवर्टाइजमेंट हो सकता है क्या? यस मैम. मार्केट स्ट्रक्चर, गुड एडवर्टाइजमेंट भी होता है. इसलिए देखो मार्केट में रीच भी मैम. मैम हाँ. टेस्ट एंड प्रेफरेंस. टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो तो तुम कस्टमर की बात कर रहे हो. टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो कस्टमर डिसाइड करेगा, कॉम्पिटिटर क्यों डिसाइड करेगा. हाँ, ये तुम बोल सकती हो कि अगर अब जैसे एचएमटी क्यों बंद हो गई, क्योंकि एचएमटी की घड़ियां देखो, एट वन टाइम एचएमटी वाज अ ह्यूज कंपनी. अभी भी आपके पास, आपके मम्मी पापा के पास वो शोपीस वाली एक आध घड़ी होगी यस मैम. HMT, है ना. तो HMT घड़ी क्यों बंद हो गई? बिकॉज इट कुड नॉट केटर टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ इट्स कस्टमर्स. अगर कस्टमर का डिमांड चेंज हो रहा है और आपकी सप्लाई उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग नहीं है, तो दिस इज मोर लाइकली कि ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के लोग आपके कॉम्पिटिटर्स के पास जाएंगे. इसीलिए कहीं पे कुछ बेचने के लिए मार्केटिंग और रिसर्च का जो पार्ट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ये बहुत तगड़ा होता है. ठीक है. मार्केटिंग एंड रिसर्च part of an organization has a tremendous work to do to keep researching for the taste and preference of its customers. Understood? So competitors बहुत, and technology is a very very big thing. If you use technology, the usage of technology generally improves the quality. इसीलिए हम technology की बात करते हैं. Generally improves the quality that you deliver to the organization. Okay? ब्रांड वैल्यू जो होती है, ब्रांड लॉयल्टी, ये एक एक्सेप्शन है, इसको छोड़ दो. जैसे कि अगर अगर हमको कोई टीवी 55,000 का मिल रहा है, स्टिल आई विल गो एंड बाय अ टीवी ऑफ सोनी, क्योंकि मुझे सोनी का टीवी पसंद है, क्योंकि मुझे सोनी के गैजेट्स पसंद है. तो वो टीवी आपको 90,000 भी मिलेगा तो आप खरीदेंगे. तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. फाइन, दैट इज कॉल्ड ब्रांड लॉयल्टी. जस्ट एज आई टोल्ड यू कि जब ब्रांड लॉयल्टी होती है किसी चीज में, तो आप फिर अगर थोड़ा सा 19-20 भी टेस्ट होता है तो भी आप यू गो फॉर योर ब्रांड. फाइन. जैसे आप देखेंगे कि कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है, तो एक जनरल इंक्लिनेशन होता है लोगों का किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ, कि हमने इसका मटेरियल खरीदा, अभी तक वो चल रहा है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, इसकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, सो आई विल गो फॉर दिस ब्रांड. फाइन, वो एक अलग बात है. मैम जियो एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, जो मार्केट स्ट्रक्चर को पूरा बदल के रख दिया. सिम कार्ड के मार्केट स्ट्रक्चर को पूरा बदल के रख दिया जियो जब आया.
हाँ, that is because it catered to the need. That is because कि वो free से शुरू किया था and gradually अब देखो policy and now when people are adapted to it, you know, for free का internet, now it has raised the price. प्राइस रेज किया है ना, क्योंकि एयरटेल तो शुरू से Yes, ma'am. कम्युनिकेशन अच्छा दे ही रहा था। एयरटेल का टावर तो वहां पे भी है, उतनी ऊंचाई पे भी है जहां किसी और का टावर नहीं लगा है। एट 14,500 फीट आप नाथुला चले जाएंगे, इंडो चाइना बॉर्डर का, वहां भी एयरटेल का टावर कैच करता है। वगैरह में मैम एयरटेल ज्यादा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, तो यू नो दैट इज अनदर थिंग, बट जियो कैप्चर्ड मार्केट, वो वॉल्यूम बढ़ा दिया इन चीजों का। हालांकि ये थोड़ा सा अनएथिकल माना जाता है इस तरीके का प्रैक्टिस। इट वाज लिटिल अनएथिकल, रिलायंस का जो ये जो चीज उसने की थी उसको थोड़ा अनएथिकल किया जाता है, बट एवरीवन नोज दैट इट इज अ ह्यूजली प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो प्रॉफिट के आगे कुछ नहीं सोचती। ठीक है, जैसे रिलायंस ट्रेंड, ठीक है, रिलायंस ट्रेंड वो कपड़ा बनाती है, कपड़े में भी एक वेस्ट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट बोल सकते हो कि टैनिन बचता है, तो दिस टैनिन वाज अगेन रीयूज्ड एंड पुट इनटू मेकिंग ऑफ, इन इट डाइवर्सिफाइड इनटू रिलायंस फुटवेयर, राइट। तो Yes, ये ma'am. चीजें डिपेंड करती हैं कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप फिलोसफर, जो टॉप मैनेजमेंट है वो किस तरीके का है। जैसे आप मान लीजिए कि यू नो लेदर बैग की आप कंपनी है, योर लेदर बैग ऑर्गेनाइजेशन, और उससे छोटा छोटा लेदर बनता है, छोटा छोटा, ठीक है, छोटा छोटा लेदर। ऑब्वियसली बड़ा लेदर का बैग बनेगा तो छोटा छोटा लेदर का पीस रहेगा, और लेदर का अच्छा मार्केट है इंडिया में, हैंडबैग्स वगैरह, क्लच एंड ऑल दैट इज प्रेफर्ड। अब आपका टॉप मैनेजमेंट ऐसा है जिसको कि ये लगता है कि नहीं, अब चलो हम इसको सेल करेंगे और अट्रैक्टिव बना के हाई प्राइस पे, तो इसका भी एक मार्केट बन जाएगा। बट आपका टॉप मैनेजमेंट ऐसा है कि क्योंकि हमको बहुत मिनिमम कॉस्ट पड़ता है इस लेदर को बनाने में, क्योंकि ये एक बाय प्रोडक्ट जैसा है, तो हम इसको बहुत कम प्राइस में मार्केट में बेचेंगे, या एक बड़े लेदर बैग के साथ एक छोटा सा फ्री देंगे गिफ्ट। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है। जैसे टाटा दे कॉल देमसेल्व्स इंडस्ट्रियलिस्ट्स, they call themselves industrialists, they work for the betterment। बहुत सारा चीज है, टाटा के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो they are generally, आप बात करेंगे टाटा ग्रुप से तो they are happy people, okay, they do not have grudges with the organization too much। Reliance is a hugely corporate organization। मैंने आपको पहले भी बताया ये सब इतना सिंपल नहीं होता है, उनका कॉर्पोरेट इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनका कॉर्पोरेट नेक्सस ऐसा होता है कि अगर इनके अगर इनके मिडिल मैनेजमेंट कहीं और इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप समझ सकते हैं इस कंपनी का औहदा क्या है, वहीं से फोन आ जाता है, सर आपके यहाँ से तो ये आए हैं, अब आगे क्या, भेजो वापस। तो आपको लिया ही नहीं जाएगा क्योंकि इनका नेक्सस इतना बड़ा है। तो देयर इज समथिंग अनएथिकल इन रिलायंस। मैम ये गलत है ना। गलत सही कुछ नहीं था बिजनेस में, इतना एथिक्स पढ़ के जाते हैं यूपीएससी के 4th पेपर में लोग, तो आईएएस ऑफिसर्स फंसते नहीं है। लेकिन देयर आर पीपल, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो जिनका बहुत फेयर प्रैक्टिस है चीजों का, ऐसा नहीं है। उसने रिलायंस का एग्जांपल दिया इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। दिस वाज अबाउट माइक्रो एनवायरनमेंट। नाउ यू कम बैक टू मैक्रो एनवायरनमेंट। जब आप मैक्रो में आते हैं, याद है किसी को क्या क्या फैक्टर्स बताया गया था मैक्रो में? मैम पेस्टल। बस ऐसे ही याद रखना है। पेस्टल, P फॉर पॉलिटिकल। E फॉर एनवायरमेंटल। इकोनॉमिकल, पहले बोलो इकोनॉमिकल। S फॉर सोशल। सोशियो कल्चर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एनवायरमेंटल and L for legal. Okay. P for political. For example, अभी अगर आपने देखा होगा किसी भी to trade, to work in any country, you need to be your ideology should match with or at least your ideology of working in any country should be given impetus by the government of that
दैट कंट्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ से कोई चाहे कि सऊदी अरेबिया में वाइन का बिजनेस करेगा, तो वहां का जो पॉलिटिकल सिनेरियो क्या उसको अलाउ करेगा? नो मैम। नहीं करेगा, वहां की कल्चर उसको परमिट नहीं करेगी। टेस्ला, अभी टेस्ला का there is a conversation going on. There's it was a news that Tesla wants to work in India. It wants to set up its hub in India, but there is some constraints on part of the government. Okay, तो जब तक गवर्नमेंट से सेटल नहीं हो रही है, वो आए और इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दे, तो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता है, बहुत सारे लाइसेंसेस को क्लियर करना, जमीन देना, वहां से फैसिलिटेट करना उसको, उसके ऊपर कोई कर ना लगा दे। जैसे बाहर की कंट्रीज जो बाहर की कंपनीज, बाहर की कंट्री की जो कंपनीज है जो इंडिया में काम कर रही है, उनके ऊपर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम्हारी कंपनी को कितना सूट करता है, तुम्हारे प्रॉफिट जनरेशन में कितना हेल्पफुल है, कितना रुकावट है, दिस यू हैव टू सी, राइट? दिस यू हैव टू सी। नाउ इकोनॉमिकल फैक्टर। मैम वो तो चाइना में एस्टेब्लिश कर रहा है ना टेस्ला? हाँ बोलो फिर से। चाइना में तो एस्टेब्लिश कर रहा है अपना फैक्ट्रीज टेस्ला। तो आई एम टेलिंग यू कि इंडिया में बात फंसी हुई है क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ उसकी शर्त है which the Indian government is not approving of। तो वो अपना प्रॉफिट देखेगी पहले। और कोई भी बिजनेस अगर इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब करती है, देखिए इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह क्यों इंपॉर्टेंस रखता है? आपका कंपनी हमारे यहाँ काम कर रहा है, इतना एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। जब कोई बात होती है कूटनीति, क्यों कूटनीति में ट्रेड सबसे बड़ी चीज होती है। हमारा पोर्ट है कहीं किसी कंट्री पे बना हुआ है, किसी और कंट्री के, जैसे इंडिया में जितना डैम वगैरह बना था सेकेंड 5 ईयर कमीशन के टाइम पे, वो रशिया की हेल्प से भी बना था, रशियन टेक्नोलॉजी भी थी। सो दिस वे देयर इज अ सपोर्ट, मतलब इंटर कंट्री ट्रेड बहुत ज्यादा होता है, एंड दैट इज हाउ द ट्रेड्स आर कैरिड आउट अराउंड द वर्ल्ड। ओके, सो नाउ इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर में जैसे एवरीथिंग रिलेटेड टू द मॉनेटरी थिंग, ठीक है, पैसे से रिलेटेड जैसे। और ये एकदम मैक्रो फैक्टर है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बियॉन्ड कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल, जब टैक्सेशन सिस्टम को जीएसटी किया गया, ओके, टैक्सेशन सिस्टम को जब जीएसटी किया गया, तो ये जो जीएसटी था, ये आपने देखा होगा कुछ ट्रेडर्स ने इसका विरोध किया, कुछ इसके सपोर्ट यस मैम। किसी को इससे बहुत नुकसान हुआ, और किसी ने ये सोचा कि दिस इज गुड, सोर्स पे क्योंकि टैक्स लग रहा है इसलिए टैक्स की चोरी रुकेगी। अब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को ये सूट करता हो या मत करता हो, सिंस दिस इज अ गवर्नमेंट रूल, you have to follow it. And if you want to survive in your business, you need to have a way out to this. External factors को हम change कर सकते हैं क्या? No. नहीं कर सकते। The only thing that you can do is you cope up according to the external factor. और इसीलिए जो आप प्लानिंग पढ़ते हैं कि ऊपर के लेवल में, टॉप लेवल के लोग प्लानिंग करते हैं, एंड दे आर ऑलवेज इनटू एनवायरमेंटल रिसर्च, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो यही होता है, गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी चेंज करने वाली है, क्या चल रहा है मार्केट में, ये सब रीड करके वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही उस कंटिजेंसी या उस अप्रोच के लिए प्रिपेयर करता है। This is why it is called कि planning is a continuous process. Okay? जैसे जीएसटी आने वाला है तो वो ठीक है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको पता होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने वाली है, बिकॉज दे आर कंटिन्यूअसली इनटू रीडिंग ऑफ मार्केट। ये हुआ जीएसटी की बात। डीमोनेटाइजेशन हुआ, रातों रात गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइज कर दिया। अब इसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा, 2016 की ये बात है। अब इसका भी कुछ व्यापारियों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। अब कुछ के ऊपर डीमोनेटाइजेशन से जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थे वो बहुत हर्ट हुए थे, क्योंकि उनका लेन देन जनरली कैश में होता है। ओके, कैश में था या फिर छोटा ट्रांजैक्शन होता है, सो ये इम्पैक्ट हुआ। तो इस तरीके की चीजें इकोनॉमिक पॉलिसी है, या टैक्सेशन सिस्टम है। अभी अगर टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दिया जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें
किसी कंट्री में मैक्रो एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है. नाउ यू कम टू पीई हो गया, पीएस सोशियो कल्चर फैक्टर. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वहां का सोशियो कल्चरल फैक्टर्स क्या है. ये इतना बड़ा फैक्टर है. कल्चर, व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज अ सेट ऑफ बिलीफ, अ सेट ऑफ रूल्स दैट वी फॉलो. हम कहते हैं कि ये हमारे कल्चर में, ठीक है. जब कोई फेस्टिवल आता है तो आप मार्केट निकल के देखिए, आपको कल्चर फील होगा, ठीक है. हम इतना कहते हैं कि लोग इतना हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, द जूस, द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय हेल्दी ड्रिंक्स, ये टी, वो टी, ग्रीन टी एंड ऑल दैट. और आप रिपब्लिक डे के दिन निकल के देख लीजिए, कोई जलेबी की दुकान आपको खाली मिलेगी नहीं. ये फैक्टर है. Yes, ma'am. दिस इज आवर कल्चर. झंडा फहराना है और जलेबी खाना है, ठीक है. एंड आप सरप्राइज होंगे ये देख करके कि कहाँ गया हेल्थ, कहाँ गया स्वीट का बिजनेस. रुका है क्या इंडिया में? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. स्वीट इज नाउ, यू नो, मिठाई का बिजनेस इज नॉट फूड, दिस इज सेंटिमेंट्स इन इंडिया. दिवाली है, लड्डू खाना है. एंड देन जस्ट लुक एट दोज शॉप्स लाइक हल्दीराम्स, आप देख लीजिए या कोई भी शॉप देख लीजिए, क्या धड़ल्ले से मिठाई बिकती है. दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, राइट. होली के टाइम पे कुर्ता पैजामा, राइट. लोग जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जानती हैं कि होली के टाइम पे 2 साल के बच्चे के लिए भी कुर्ता पैजामा खरीदेंगे लोग. तो इसका प्रिपरेशन तो ऑर्गेनाइजेशन पहले से करती है ना, इसका प्रिपरेशन पहले से करती है ताकि उसके स्टॉक की कमी ना हो. मैरिज इज सच अ बिग मार्केट इन इंडिया. 2-2.5 लाख रुपए का तो लूज खर्च होता है. और ये कोविड के टाइम पे जो छोटे छोटे लोग थे, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जो टोकरी बना के, जो डाला बना करके बेचते थे, उनको कितना नुकसान हुआ. 10 लोगों में शादी, वी कैन नॉट इवन इमेजिन दिस, राइट. Indian wedding is all about wasting money, okay. So, and if you don't get to waste money, you feel so incomplete. So this COVID made us see कि this COVID, ये marriage, ये culture क्या है, ये हमारा culture है. इसी culture को कोई भी organization tap करती है, research करती है कि इस market में, इस जगह पे, यहाँ के लोगों में क्या culture है. गुजरात में स्वेटर बेचोगे क्या? क्या करोगे बेच के? वहां ठंडी बिकती है. एंड लेकिन गुजरात में 14 जनवरी की तैयारी, 14 जनवरी होती है, वहां की तैयारी बहुत दिनों पहले से, लगभग साल भर से चलती है. वहां आपको इतनी पतंग और इतने टाइप की पतंग दिखेगी 14 जनवरी उसके पहले ही. पीपल आर सो 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 पैशनेट अबाउट काइट फ्लाइंग. अहमदाबाद में तो काइट फेस्टिवल भी होता है, you know it, it's an international festival, it's a very huge festival. लेकिन आप सिर्फ उस पर्टिकुलर फेस्टिवल की बात अगर छोड़ दें तो भी ऐसे छत छत पे मांझा, ये सब जो बनता है, धागा, मांझा, काइट, डोरेमोन की काइट है छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए काइट है, ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइजेशन टैप करती है कि दिस इज द नीड एंड यू नीड टू प्रिपेयर योर ऑर्गेनाइजेशन बिफोर दिस टाइम टू मेक प्रॉफिट. Okay. Yes, So ma'am. culture is very important. Plus the other thing, अब ये तो थोड़ा लाइट पार्ट हुआ कल्चर के बारे में. Come to some serious part. जैसे India is a culture. जैसे सऊदी अरेबिया, it's an Islamic country. It's purely Islamic. मतलब everything they are very very ardent, जिसको कहते हैं कट्टर इस्लामिक. सऊदी अरेबिया में ट्रेड भी उसके रिलीजन से गाइड होता है. मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि यहाँ पर अगर ट्रम्प आते हैं तो ही कम्स विथ हिज वाइफ, एंड यू नो इंडिया में जो फर्स्ट लेडी होगी वो भी उनको वेलकम करेगी, डिनर के लिए होस्ट करेगी. दे बिकम होस्ट फ्रॉम द इंडियन साइड एंड they can come and ask कि how is your family, where's your wife, how have your children been doing of late. लेकिन आप अगर यहाँ से कोई डेलीगेट जा रहा है तो सऊदी अरेबिया के किंग से नहीं पूछ सकता है कि आपकी वाइफ कैसी है. They will not bring, खून कर देगा वहां पर, ठीक है. So this is kind of culture that you need to understand. जैसे फ्रेंच वगैरह में when you're doing business, when you're showing a lot of
घनिष्ठता with each other, you can give them wine. बहुत पुरानी वाइन गिफ्ट करना is like an elite gift, अच्छा गिफ्ट समझा जाता है। लेकिन आप सऊदी अरेबिया जाके ये सब नहीं कर सकते। आप वाइन गिफ्ट करेंगे तो बस वहां रख लेंगे आपको, ठीक है। सो नॉट लाइक दैट। ये कल्चर है, आपको कल्चर समझना होगा। There's another culture, there's another thing that we Indians are very family oriented, very traditional। अभी भी चाहे हम जितना मॉडर्न क्लेम करें, ये जो लेवल ऑफ हायरार्की है हमारे फैमिली में, वो हमारे कल्चर में भी रिफ्लेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अभी का जनरेशन थोड़ा खुला है, बट स्टिल क्योंकि we do not have much culture of sitting with our parents and then watching TV, and then Indian culture बहुत explicit नहीं है, इसीलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का जो एड बनता है वो जहां एक कंट्री एक कल्चर के लिए फिट है, वहां दूसरी कंट्री के लिए वही एडवर्टाइजमेंट अनफिट होता है। जैसे देयर आर फ्यू एड्स ऑफ लेवाइस जीन्स व्हिच इज ओके इन अमेरिका बट नॉट ओके इन इंडिया, ओके, क्योंकि वी डू नॉट अप्रिशिएट एक्सप्लिसिट कल्चर। और अगर इंडिया में आप देखते हैं ना कि किसी बात को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया जाता है इंडिया में, अगर कोई बात होती है तो बिकॉज क्योंकि बिजनेस को ये बहुत ज्यादा समझना होता है कि यू कैन नॉट एट एनी कॉस्ट even think of attacking the culture of that place। attacking छोड़ो, hurting the sentiments at that place। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक कल्चर में और भी बातें हैं कल्चर की, ये कल्चर बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे कुछ वर्ड्स होता है जो किसी और कंट्री में आप एडवर्टाइजमेंट में या ब्रांडिंग में, कोल्ड ड्रिंक के कैन में यू कैन यूज दैट वर्ड, लेकिन किसी और कंट्री में वही वर्ड स्लैंग हो सकता है, ओके, और इनडायरेक्ट मीनिंग हो सकती है। इसीलिए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। और ये बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है। इतना रिसर्च करने के बाद भी आपको सरप्राइज होगा कि कंपनीज ऐसी चीजों में फंस जाती है, चीजें चेंज करना पड़ता है। फाइन, जैसे तनिष्क का एड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कल्चर के लिए। अब अच्छा है या खराब है ये आप डिसाइड कीजिए, लेकिन बात तो यही हुई कि ये कल्चर हिट किया। हमारा इंडियन कल्चर है, आप कन्यादान को रिडिक्यूल कर रहे हैं, आप यही क्यों दिखाते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही सबमिसिव क्यों दिखा, these things they do impact। हाँ बोलो। वो मान्यवर का था, तनिष्क का ऐड नहीं था। हाँ, मान्यवर का लहंगे का ऐड था, आई गेस समथिंग, या राइट। एक्चुअली मैम वो तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन हो गया ना, कि आप ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं। आपने ऐसा प्रेजेंट किया, लेकिन इस पे बवाल क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को ये लगा कि उनके कल्चर को अटैक किया गया। मतलब उसको एक चीज है जो कन्यादान जो रस्म होता है, तो उसको एक गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, उस पे बोला गया कि भाई ये चीज सही नहीं है। देखो तो एक और बात तो सच भी है, एक और बात भी है, अगर तुम अनबायस्ड दिमाग से समझोगे तो तुमको ये भी समझ में, सी ऑल ऑफ यू आर अडल्ट हियर, नोबडी इज लाइक, और ग्रेजुएशन से भी नहीं आप लोग के स्कूल से निकल के आए, तो थोड़ा आप ये समझिए अनबायस्ड माइंड से, ये जब से सोशल नेटवर्किंग साइट आया है, लोग कुछ जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेसिव भी हो गए। जिनका घर में भी मुंह नहीं खुलता है, वो सोशल नेटवर्किंग साइट पे बवाल किए रहते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज सो इजी टू मैसेज बिहाइंड एनीथिंग, दिस इज सो इजी। घर में शायद मम्मी पापा के सामने बात नहीं होती होगी, लेकिन सोशल नेटवर्किंग पे झंडा उठाए हुए हैं, ओके। कल्चर के बारे में क्या ही जानते हैं आप, पीपल के पेड़ के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर कोई आप, इसलिए ट्राई टू अप्लाई हाँ बिल्कुल, you'll not, क्योंकि जैसे कुछ memes आता है ना, that is very true, कि अगर आप फेसबुक ट्विटर बंद कर दें तो आपको लगेगा कि दुनिया में बहुत शांति है, ओके, बिकॉज these things they do, क्योंकि हम ऐसे बिहेव करते हैं, इसलिए इनको पावर मिल जाती है चीजों को गलत तरीके से माइंड में फिट करने की भी। Then no one will talk about the real matters like employment, no one will talk about the real matters like, आप फेमिनिज्म की बात करते हैं, दुनिया स्यूडो फेमिनिज्म के पीछे पड़ी हुई है, जो एक्चुअली कोई फेमिनिज्म नहीं है, तो रियल मैटर से तो आप बाहर हट गए हैं, अंडरस्टूड। सो दीज थिंग्स, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, और ऑब्वियसली उसका जो अगर डिग्री ऑफ उसका रेगुलेशन नहीं होगा तो वो गलत तरीके से भी दिमाग इंस्टिगेट करेगी, फाइन। और इस पे बहुत डाइसेक्शन है, बहुत डाइकोटमी है कि वो एड कितनों को अच्छी भी लगी और कितनों को बुरी भी लगी, फाइन।
नॉट एवरीथिंग इज वेरी गुड अबाउट कल्चर, देयर आर थिंग्स जो टाइम के हिसाब से चेंज भी होनी चाहिए, जरूरी है, राइट? देन ओनली वी कैन टॉक ऑफ अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। सब कुछ नहीं, बट कुछ चीजें तो चेंज होनी चाहिए। But mindset is not possible to change, ma'am. नहीं, इट इज चेंजिंग अजीत। अगर ये चेंज नहीं होती तो समाज आज आपको वैसा नहीं दिखता। आप अपने मम्मी पापा के जनरेशन को देखिए और खुद के जनरेशन को देखिए, ठीक है? ये काफी चेंजेस है। Yes, ma'am. ये तो आजादी की लड़ाई के जैसा है। जैसे आजादी रातों रात नहीं मिली थी, वैसे ही माइंडसेट चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट है, इट्स इजियर टू ब्रेक एन एटम देन अ प्रेजुडिस। यानी आपकी कोई धारणा बनी हुई है तो उसको तोड़ना किसी एटम को तोड़ने से ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है? तो सोसाइटी चेंज तो हो रही है, Yes, और ma'am. टाइम मिलेगा। हो सकता है आपके तरफ से जो चेंज आ रहा हो वो आप नहीं बहुत भोग पाए उसको, बट देन योर फोर्थकमिंग जनरेशन विल थैंक यू फॉर दैट, मे बी। ओके, Yeah, ma'am. चलो, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल जस्ट रैप अप दिस चैप्टर, क्योंकि 2 है। सिस्टम अप्रोच समझा दिया आपको कि एनवायरनमेंट इतने तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करती है, और ये सिस्टम में सिस्टम अप्रोच, ओपन सिस्टम अप्रोच का यही मतलब होता है, एंड कंटिंजेंसी मॉडल है। एंड देन द नेक्स्ट चैप्टर विल बी अ रिविजन फॉर द एंटायर चैप्टर। ओके, पढ़ के आइए सब। चलो, Okay.